Good morning, students. Now we are going to start the class. In this class, we are going to discuss the next topic of chapter number 3, that is methods of collection of primary data. In the last class, we have discussed that there are two sources of collecting the data. First one is primary source and second one is secondary source. The data that we used to get from primary source is known as primary data, and the data that we receive from, that we collect from secondary source, is known as secondary data. But I told you that there are so many methods of collect. प्राइमरी अब ये सोर्स है, अब उस सोर्स में कितने मेथड्स हैं जहां से आप प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हो. टुडे वी विल डिस्कस दैट. ओके, so here it is written there are 4 methods of collecting primary data. Okay, first one is direct personal investigation. Second one is indirect oral investigation. Third one is information from local sources. And fourth one is information through questionnaires and schedules. One by one, we will discuss all these methods in detail. First of all, today we will discuss direct personal investigation. This one. As the student's name itself suggests, what is direct personal investigation? नेम से समझेंगे डायरेक्टली जब पर्सन के थ्रू और पर्सन से इन्वेस्टिगेशन किया जाए, दैट विल बी नोन एज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. इट इज सिंपल. हियर द डेफिनेशन इज रिटन, data or information, the data or information which is collected personally by the investigator, okay, from the informant, ठीक है, is known as data or primary data. Direct personal investigation means when the investigator, the person who is investigating any problem, when he directly collects the information from the informant. Informant here refers to the people who are providing the information. जब एक इन्वेस्टिगेटर मतलब एक डेटा को कलेक्ट करने वाला पर्सन डायरेक्टली उसी पर्सन से डेटा कलेक्ट करता है जिसकी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, किस तरीके से पर्सनली मतलब खुद जाकर उसी पर्सन से डेटा कलेक्ट करता है, दैट मेथड इज नोन एज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. इज इट क्लियर? But in this data, investigators should be very efficient, impartial and tolerant. Here you can see that for this method, the investigator should be very efficient, tolerant and impartial because he is collecting the data directly from the concerned person. तो इसलिए investigator कैसा होना चाहिए? बहुत efficient होना चाहिए, intelligent होना चाहिए and impartial. He should not have any biasness in his mind क्योंकि हमें पता है जैसा डेटा वो कलेक्ट करके लाएगा उसी डेटा को आगे रिजल्ट इफेक्ट करेंगे. ठीक है, तो वो कैसा होना चाहिए? इम्पार्शियल. उसके माइंड में किसी भी तरीके की कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए. अगर उसके माइंड में कोई पार्शियलिटी होगी तो वो किसी भी डेटा में कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकता है. और वो प्राइमरी डेटा है तो सब लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे. ठीक है, क्योंकि ओरिजिनलिटी पर्सन से कलेक्ट करके आई है तो ऑब्वियसली बात है सब क्या मानेंगे कि डेटा क्या होगा? करेक्ट होगा. तो उसके लिए जो पर्सन है, मान लीजिए गवर्नमेंट अगर सेंसस ऑर्गेनाइज करा रही है या कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जो कि कलेक्ट करनी है, तो ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया जाता है जो क्या होते हैं? इम्पार्शियल, सो दैट दे कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन द कंसर्न इंफॉर्मेशन. और डेटा और इन्वेस्टिगेटर कैसा होना चाहिए? he should be tolerant because he has to deal with different individuals. हर एक पर्सन के पास इंडिविजुअली जाके वो डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो he should be very much tolerant. ठीक है, सभी का बिहेवियर अलग होगा, सिचुएशन अलग हो सकती है, आंसर देने का तरीका अलग हो सकता है. तो डेटा जो इन्वेस्टिगेटर है वो कैसा होना चाहिए? he should be tolerant. Is it clear? Again I am explaining the meaning. The data or information which is directly collected by the person, by the investigator from the informant personally is known as direct personal investigator. For example देख लेते हैं कि अगर COVID-19 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर किसी के घर में 2 इन्फेक्टेड पीपल्स मिले हैं तो न्यूज रिपोर्टर अगर उसी घर में जाके उसी घर के लोगों से कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि आपको क्या सिम्टम्स थे, आपको कैसे पता चला, आपने कहाँ टेस्टिंग कराई, तो अगर हम उसी पर्सन से डायरेक्टली वो पर्सन, न्यूज रिपोर्टर कौन हो गया?
इन्वेस्टिगेटर, और जो बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो इन्फेक्टेड पीपल है, उसकी फैमिली वाले हैं, वो कौन हो गए? इन्फॉर्मेंट। डायरेक्टली डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। क्लियर? Now students, we will see that in which conditions this method of primary data, collecting primary data is suitable. First one is the field of information is not very large. अगर आप सोचिए बहुत बड़ा फील्ड है, फील्ड का मतलब यहाँ किससे है कि जो यूनिट्स आप कलेक्ट करने जा रहे हो, जिस फील्ड से आप डेटा को कलेक्ट करने जा रहे हो, अगर वह नंबर ऑफ यूनिट बहुत ज्यादा लार्ज है, so it will be very difficult for the person to collect the information individually from each and every person इंडिविजुअली। तो ये वाला डेटा सिर्फ कब यूज होता है? जब हमारा जो फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन है वो स्मॉल हो, ठीक है, जहां पर अलग अलग इंडिविजुअल से डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल हो सके। क्लियर है बात? क्योंकि अगर डेटा बहुत लार्ज होगा तो वहां पे डायरेक्टली पर्सनली एक एक पर्सन से इंफॉर्मेशन लेना, इट विल बिकम वेरी कॉस्टली एंड एज वेल एज इट इज टाइम कंज्यूमिंग। अब आप कहेंगे कि मैम गवर्नमेंट जब सेंसस करती है तो एक एक घर पे जाके, दैट इज कंपल्सरी, लेकिन वो क्या मेथड हो गया? हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसे एरिया में ये बिल्कुल यूज होता ही नहीं है, बट अगर आपका डेटा जो फील्ड है वो लार्ज है तो इस मेथड को मोस्ट प्रोबेबली इग्नोर किया जाता है। ठीक है। सेकेंड वन इज ओरिजिनल डेटा इज रिक्वायर्ड। डेटा अगर बिल्कुल ओरिजिनल चाहिए, वी डू नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ मैनिपुलेशन और मिस्टेक। हमें ये चाहिए जो भी डेटा है वो बिल्कुल ओरिजिनल हो, कहीं से कॉपी किया हुआ या डुप्लीकेट नहीं है, तो उस केस में हमारा डायरेक्ट सुटेबल मेथड इज प्रॉपर, इज सुटेबल। क्लियर? सो व्हेन द डेटा दैट वी रिक्वायर इज टू बी ओरिजिनल, बिल्कुल करेक्ट डेटा और ओरिजिनल डेटा चाहिए विदाउट एनी बायसनेस or any manipulation, in that case direct personal investigation is required. Coming to the third point, information to be kept secret. When there is a condition when we don't want to open the data with any other people and we want to keep the data with us only, okay, between the informant and the investigator, in that case direct personal investigation is required. Clear? मतलब दोबारा समझेंगे, अगर कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो आप सामने वाले पर्सन से ही पूछ सकते हो, किसी थर्ड पर्सन के साथ उस प्रॉब्लम को या उस इंफॉर्मेशन की रीजन को शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में लोग क्या कोशिश करते हैं कि हम डायरेक्टली उसी पर्सन से बात करें जो पर्सन के लिए हम डेटा को कलेक्ट करने वाले हैं, जिससे कि और किसी पर्सन के साथ वो डेटा सीक्रेसी जो है वो ओपन नहीं हो पाए। क्लियर? When direct contact with the individual is required, when there is a information that you are in requirement, it to be given by the informant only. ऐसी जरूरत है कि उसी पर्सन से बात करने की जरूरत है, बाकी कोई और पर्सन उसके बारे में नहीं बता सकता है, तो इन दैट केस डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। क्लियर? जैसे हमने कल एक एक्सीडेंट का एग्जाम्पल लिया था, तो एक्सीडेंट जिस पर्सन का हुआ है उसके बाद जो पुलिस है उसके बाद उस पर्सन से भी इन्वेस्टिगेशन करती है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्योंकि एग्जैक्टली क्या हुआ था इट विल बी टोल्ड बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन ओनली। आसपास वाले बता तो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो जो डेटा है वो बिल्कुल ओरिजिनल नहीं हो, तो अगर डेटा को ओरिजिनलिटी रखनी है आपको और आपको पता है कि हम उस पर्सन से ही इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो in that case direct personal investigation method is required. Clear? So what is the suitability? If the field is not large, okay, and when original data is required without any manipulation, mistake or biasness, and when the information is to be kept secret, we don't want to open that information with any other third person, it is to be kept secret between the investigator and the person who is giving the information. Clear? And when direct contact with that individual is required, we cannot collect the data by asking some third person. Okay, these are the suitability for using the direct personal method of primary data. Now students, coming to the advantages of direct personal investigation method of primary data, first advantage is originality. As we have already discussed, the data which is collected from the डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज यूज टू बी वेरी मच ओरिजिनल। ओके, क्योंकि जिस पर्सन के साथ वो इवेंट अकर हुआ है या फिर जहां वो हमने पढ़ा था प्राइमरी डेटा कहां से कलेक्ट किया जाता है, फ्रॉम द ओरिजिन।
अगर आपने वहीं से वो डेटा कलेक्ट किया और पर्सनली उस पर्सन से मिलके, देन दे आर 99% चांसेस दैट दीज डेटा आर ओरिजिनल। ओके, अगर उस इंफॉर्मेंट ने या फिर इन्वेस्टिगेटर ने कोई भी, अभी हमने पढ़ा कि कोई भी पार्शियलिटी नहीं की है, देन द डेटा विल बी ओरिजिनल दैट यू विल रिसीव फ्रॉम द प्राइमरी डेटा मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा। ओके, सेकेंड वन इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब कि जो डेटा आप डायरेक्ट पर्सनली कलेक्ट करते हो, इट शुड बी वेरी मच एक्यूरेट, बिल्कुल करेक्ट होता है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन उसी पर्सन ने दी है जिससे वो इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड थी। क्लियर? तो डेटा क्या होता है? बिल्कुल ओरिजिनल, विदाउट एनी डुप्लीकेसी। एंड सेकेंड वन इज दिस डेटा इज वेरी मच एक्यूरेट, इट मीन्स इट इज करेक्ट। क्लियर? थर्ड वन इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स इट इज द डेटा ऑन विच वी कैन ट्रस्ट अपॉन। इन्वेस्टिगेटर या फिर कोई भी पर्सन, इन्वेस्टिगेटर उस पर ट्रस्ट कर सकता है, रिलायबल होता है, क्योंकि वो डेटा उसने खुद कलेक्ट किया है और सेम पर्सन से कलेक्ट किया है जिससे वो इंफॉर्मेशन रिलेटेड थी। तो देयर आर नो चांसेस ऑफ एनी मिस्टेक्स और बायसनेस। जो भी डेटा उसने कलेक्ट किया उसे पता है दैट दिस डेटा इज कलेक्टेड बाय मी ओनली, सो इट मीन्स आई कैन ट्रस्ट अपॉन दैट डेटा। छोटे छोटे वर्ड्स का डिफरेंस है। ओरिजिनलिटी मीन्स विदाउट एनी डुप्लीकेसी द डेटा इज वेरी मच ओरिजिनल। एक्यूरेसी मीन्स इट इज वेरी मच करेक्ट। रिलायबिलिटी मीन्स द डेटा विच on which the investigator can trust upon that yes, it is the data that I have collected, it means it is original and correct. ट्रस्ट किया जा सकता है क्योंकि वो डेटा उसने खुद कलेक्ट किया है और उसी पर्सन से किया है which the information is related. Okay. Fourth one is related information. Now we can relate this information for any other investigation purpose. ठीक, कोई भी इन्वेस्टिगेशन, फॉर एग्जाम्पल आपने पर्सन की इनकम का डेटा कलेक्ट कर लिया, हाइट, एज, सब कुछ डेटा कलेक्ट किया, तो आप एक ही इंफॉर्मेशन से बहुत सारी इंफॉर्मेशन को रिलेट कर सकते हो। क्लियर? फिफ्थ वन इज यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मीन्स कि जो भी डेटा कलेक्ट किया गया है वो एक ही पर्सन ने कलेक्ट किया है और सामने वाले पर्सन से कलेक्ट किया है जो इंफॉर्मेंट है, so the data will be uniform. There are no changes and there are no differences in the data. Okay. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई डेटा किसी और सोर्स से कलेक्ट किया है या फिर अलग अलग पर्सन ने कलेक्ट किया है, तो देयर आर चांसेस दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डेटा कलेक्टेड बाय बोथ पीपल्स। ठीक है, टू पीपल्स ने डेटा कलेक्ट किया है, लेकिन सारा डेटा जब एक ही पर्सन ने कलेक्ट किया है तो देयर आर लेस चांसेस ऑफ डिफरेंसेस एंड द डेटा विल बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स इट विल बी सेम। क्लियर? कमिंग टू द सिक्स्थ पॉइंट, इट इज इलास्टिक। इलास्टिक मीन्स देयर आर, इलास्टिक का मतलब अभी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड चैप्टर, सप्लाई चैप्टर में भी पढ़ेंगे, बट इलास्टिक मीन्स दैट यू कैन मेक एनी चेंजेस एज पर योर रिक्वायरमेंट। डेटा आपने कलेक्ट किया है, आपको उसकी पूरी डीप नॉलेज है कहाँ से डेटा कलेक्ट किया, इफ यू वांट टू मेक एनी चेंजेस इन दैट डेटा देन यू कैन सिंपली मेक द चेंजेस एज पर योर रिक्वायरमेंट। इट मीन्स दिस डेटा कैन बी एडजस्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। जो इन्फॉर्मेशन दूसरे के थ्रू प्रोवाइड की गई होती है उसमें कोई एडजस्टमेंट करना है, चेंजेस करना आर वेरी डिफिकल्ट, बट द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव कलेक्टेड आवरसेल्फ requires very less complications to adjust that data as per our requirement. Clear? हमारी अपनी नोटबुक है, आपने अपनी नोटबुक में अपने आप नोट्स बनाए हैं, आपको पता है कौन सा पॉइंट कहाँ लिखा है। अगर सेम नोट्स आप अपनी सिस्टर से या किसी और पर्सन से बनवाएंगे तो आपको ये नहीं पता होगा कौन से पेज पे कौन सा पॉइंट लिखा हुआ है। अगर कोई टीचर आपसे बोले कि वहां जो पॉइंट लिखा था उसमें चेंज कर लो, तो इट विल बिकम डिफिकल्टी फॉर यू, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। Why? Because you have not collected that note and written that note. So elastic is possible. Elasticity is possible only when the data is collected by yourself. You can make any changes or adjust that data as per your requirement. Is it clear? So students, with this we have completed the advantages, suitability and the meaning of direct personal investigation.